Okay, so hello everyone, good afternoon, and once again we are back with a new set of concepts which we are going to study today. Not in detail, but yes, I'll be introducing you to some new concepts, and believe me, one of those concepts are like it's of very much importance for our syllabus as well, and in general also everyone should know that what is that thing. So today we'll be studying about friction. Before that we'll be doing pressure, and okay, when I'll come to friction then I'll tell you why it is important, and what could be the questions or what thoughts might arise in your mind when we're talking of friction. So uh, let me first see the chat. Okay, I'm audible. Thank you. Chalo, फिर. Okay, good afternoon. So we'll begin with pressure. So this was left, and pressure is also a diverse topic, but actually we don't need to study in that detail because I was seeing, and there were barely questions on pressure, or if I had missed questions, I don't know, but there were not many questions on pressure. But still, I'll give you an idea of what pressure is, and उतना ही जानेंगे जितना जरूरत है हम लोग को. उसके अलावा अगर if I feel that something has to be added, I'll definitely add in the slide and I'll teach you in the next session. But अभी के लिए we'll जानेंगे इतना कि pressure क्या होता है, ठीक? So pressure, what is pressure? Pressure is produced when force acts upon an object. मतलब कि pressure का relation है force से upon an object. So can we say that प्रेशर लग रहा है, अगर कहीं पर प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे पहले तो चलो प्रेशर भी हटाओ. कैन वी से दैट फोर्स लग रहा है कहीं पर, दैट मींस इट हैज टू बी ऑन समथिंग, राइट? इट हैज टू बी ऑन समथिंग. ऐसे हवा में तो यू कांट फोर्स, हवा में फोर्स नहीं लगा सकते हो. देयर हैज टू बी समथिंग जहां पे फोर्स लग रहा होगा. सो व्हाट इज दैट थिंग? कोई ऑब्जेक्ट होगा, डेफिनेटली देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्ट जहां पे फोर्स लग रहा है. ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, so definitely that implies in very blatant words that particular object must be having a surface area. ठीक, अगर फोर्स लग रहा है किसी चीज पे तो उसका एरिया होगा ही होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा, आई डोंट नो, बट एरिया होगा. सो कुछ है नहीं प्रेशर. डेफिनेशन पे कभी जाओ ही मत, ठीक? जस्ट गो इन वेरी सिंपल टर्म्स, फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया, सम एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक? परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग अपॉन एन एरिया, दैट इज नोन एज प्रेशर. फोर्स जो कि किसी एरिया पे लग रहा है, दैट इज प्रेशर, दैट इज इट. ये हो गई डेफिनेशन, ठीक? Now, when a force of F Newton is applied perpendicularly to a surface area A, then the pressure exerted on the surface by the force is equal to the ratio of F to A. ठीक. And अब ना, जैसे कि अब we have covered Newton's third law of motion, we have covered first law, second law, etc. etc. बट ऐसा नहीं कि वहां से यहाँ आ गए हैं तो यहाँ फोर्स लग रहा है तो यहाँ थर्ड लॉ नहीं लगेगा, या यहाँ पे फर्स्ट लॉ नहीं लगेगा, यहाँ सेकंड लॉ नहीं लगेगा. हर लॉ लगेगा, हर जगह एप्लीकेबल है. वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट हैज टू बी अप्लाइड एवरीवेयर. तो अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट विल आल्सो विल शो सम फोर्स ऑन टू दैट थिंग व्हिच इज अप्लाइंग फोर्स ऑन इट. तो फोर्स अगर तुम दे रहे हो कहीं पर तो तुम पे वापस भी आएगा, और किस अमाउंट में वापस आएगा? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट भी कुछ फोर्स लगा रहा है, बट ठीक है, ये बस जस्ट फॉर रिकलेक्टिंग दी लॉज विच वी हैव स्टडीज. कुछ था नहीं, बस बता रहे हैं कि फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ भी लगेगा, ठीक? दैट इज नॉट आवर कॉन्टेक्स्ट फॉर टुडे. द कॉन्टेक्स्ट फॉर टुडे इज प्रेशर. सो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. अब इसकी एक यूनिट होती है, हर चीज की एक यूनिट होती है, ठीक? आई हैवंट टॉट यू यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बट आई थिंक that units and measurement has been very well covered in mathematics
if I'm not wrong, or if I haven't missed the classes, then it has been covered by Smita very well. So I don't think that we need to go deep dive into that topic कि units क्या होती है, measurement क्या होती है, but ठीक है, basic idea है कि यूनिट होती है हर चीज की, हर चीज को एक मेजर करने का तरीका होता है. विदाउट अ स्टैंडर्ड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? यू नीड समथिंग टू मेजर अ पर्टिकुलर अमाउंट और अ पर्टिकुलर क्वांटिटी. तो यूनिट ऑफ प्रेशर को बोलते हैं पास्कल. ठीक, ये एक साइंटिस्ट के नाम के आगे रखा गया था, पास्कल बोलते हैं. ठीक है. एंड फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक, ये हम लोग इसको अगर डायमेंशंस में तो सॉरी, ओके, डायमेंशंस भूल जाओ, डायमेंशंस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक, दैट मींस फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर -2 होगा क्योंकि वो नीचे है, तो ऊपर जाके -2 न्यूटन मीटर -2. एंड इसी को हम लोग पास्कल बोल लेते हैं. तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर इफ आई एम सेइंग कि आई एम अप्लाइंग अ प्रेशर of 10, so that clearly says कि 10 पास्कल, ये 10 न्यूटन मीटर -2 अप टू द पावर -2 नीचे होता है ना वो, इसलिए ऊपर आके माइनस हो जाएगा. ठीक, तो ये हो गया प्रेशर. अब इसको एग्जांपल से भी समझेंगे हम लोग. ठीक, उसके बाद हम लोग विल क्विकली मूव ऑन टू फ्रिक्शन. सो तो पहले इसका एग्जांपल लेते हैं प्रेशर का. जैसे कि just a second. तो इसके कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू दिस थिंग. तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक वुडन ब्लॉक लिया. स्कूल में सबके देखा होगा नोटिस बोर्ड होता था एक. ठीक, नोटिस बोर्ड, जहाँ पे नोटिस बोर्ड पे they had a pin which they pierced in, and वहाँ पे कागज में लगा देते थे कि कल छुट्टी है कि नहीं है, या हॉलीडे कब है. सब नोटिस बोर्ड होता था. एवरी स्कूल कॉलेज हैज दीज नोटिस बोर्ड्स. सो उसको पिन होती है एक, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दैट इज कॉल्ड एज, बट ठीक है, चलो जो भी है. सो देयर इज अ पिन, ओके, एंड से एक नोटिस है, नोटिस. सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड, ओके, वर्ड प्ले हो गया. ओके, सॉरी. सी, ये जो पिन है, पिन को देखो. ठीक, सो जो पिन होती है, राइट, पिन का जो वो होता है, द प्लेस जहां पे हम उसको प्रेशर लगाते, फोर्स लगाते हैं. ठीक, फोर्स लगाते हैं, प्रेशर नहीं, फोर्स लगाते हैं. तो वो हमेशा इतना ब्रॉड होता है एंड सर्कुलर उसमें होता है, अगर ये देखा होगा. ठीक, होता है कि नहीं होता है? एक बार चैट में रिप्लाई कर दो एंड ये भी बता देना इसको क्या बोलते हैं. आई एम फॉरगेटिंग द नेम. बोर्ड पिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Someone who remembers what this exactly is called as. बुलेटिन बोर्ड में लगाते हैं ना, बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं भी उसको. चलो ठीक है, जो भी. ठीक, तो उसका सरफेस, एवरीवन इज गेटिंग इट, राइट? उसका सरफेस थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का होता है एंड सरफेस एरिया भी थोड़ा ज्यादा होता है उसका. अब उसका रीजन है, क्योंकि फिजिक्स की बात हो रही है एंड फिजिक्स में एवरीथिंग हैज अ क्वेश्चन, व्हाई एंड हाउ. थंब पेन, एग्जैक्टली. थैंक यू अनिल. थंब पेन, ठीक है. तो ये थंब पेन, देखो नाम से समझ में आ रहा है, थंब पेन. अब इसका ना यहाँ पे ये हम लोग फोर्स लगाते हैं इस पे. ऐसे थंब लिया, सपोज दिस इज द पेन आई एम हैविंग, दिस इज माय थंब, एंड ये ऐसे आई ट्राई टू पियर्स इट इनटू द नोटिस बोर्ड. सब लोगों ने करा होगा. इसका सरफेस इतना चौड़ा क्यों होता है? इसका रीजन ये है, हमने क्या पढ़ा अभी, इसको क्लियर करते हैं. कभी ट्राई कर लेना है आप लोग. ठीक, कोई बेवकूफी होगा लेकिन जो उल्टा साइड ट्राई करेगा, बट ठीक है, एक चीज देख लो. तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया. ठीक, फोर्स एक्टिंग अपॉन एन एरिया, दैट इज नोन एज प्रेशर. ठीक, वो हो गया प्रेशर. तो अब ये बताओ, तो क्या इन दोनों में रिलेशन दिख रहा है? कौन सा रिलेशन है? जल्दी से, क्विकली.
प्रेशर और एरिया के बीच में कौन सा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, मतलब पुष्पिन घुसेगा नहीं साला। पुष्पा, इनवर्स, हाँ इनवर्स रिलेशन, चलो इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल सही। अब इनवर्स मतलब 1/a लिख सकते हैं इसको, 1/a, मतलब कि एक चीज घटेगी तो एक चीज बढ़ेगी। तो अगर इसी चीज में, इस पिन में, और कभी कभार आई एम टेलिंग यू होता क्या है, आई रिमेम्बर इट, कभी कभार ना ये इसका जो पिन का जो वो होता है ना, बेस जहां से प्रेस फोर्ड लगाते हो, कभी कभार वो टूट जाता है। सो आई हैड इनकाउंटर्ड दिस सिचुएशन इन माई लाइफ, तो एक बार वो पिन का वो टूट गया था। सो नाउ आई ट्राई टू पियर्स इट इनटू द बोर्ड, एंड हाथों में थोड़ा सा लगा। क्यों लगा, बिल्कुल लगेगा। अब क्या हुआ, पहले देखो, पहले इसका एरिया था सपोज ए, ए एरिया था, ठीक, तो प्रेशर पी था। अब एरिया हो गया 2a, एरिया 2a होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉरी एरिया होगा a/2, क्योंकि टूट गया ना ये। तो अगर ये a/2 हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 2p। समझ में आ रहा है ना, ज्यादा मैथमेटिक्स तो नहीं हो रही ना इधर, उसमें एक्सपर्ट, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट, सो ज्यादा आती भी नहीं मैथ्स, बट स्टिल इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ऊपर की पिन का हिस्सा टूट गया थोड़ा सा, सपोज इतना हो गया, तो ये क्या हो गया, a/2 हो गया, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, प्रेशर हो गया 2p, प्रेशर दुगना हो गया, मतलब अब हाथ पे ज्यादा लगेगा। इसका मतलब हम लोग सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि इफ एरिया इंक्रीजेस, इफ एरिया ऑफ द सरफेस एरिया जहां पे फोर्स लगाओगे, अगर एरिया बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। सिंपल इनवर्स रिलेशन था, मैथमेटिकली हमने दिखा दिया कि एरिया पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर, एंड सिम ये मतलब नॉर्मल थिंकिंग से भी इंसान सोच सकता है कि क्यों बढ़ेगा, क्यों हो रहा है ऐसा। एंड अगर किसी को ज्यादा उत्सुक हो रहा है कोई इंसान, तो प्लीज गो एंड ट्राई इट वंस, कभी एक बार पिन के, एक मिनट, ये है पिन, कभी इस वाले हिस्से से पुश करना पिन को, तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि प्रेशर क्यों बढ़ जाता है सरफेस एरिया घटने पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो एरिया मतलब इस पूरे का अगर देखा जाए, तो ये जो हिस्सा है पिन का जो पॉइंट होगा, ये a/20 होगा मेरे ख्याल से, इतना चौड़ा तो वो होता ही है, a/10 भी ले सकते हो। तो मतलब अगर ये a/20 हुआ तो प्रेशर 20 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। और पिन जरूर पियर्स करेगी, जरूर पियर्स करेगी, लेकिन बुलेटिन बोर्ड पे नहीं, थंब के अंदर पियर्स करेगी, ठीक। कभी ट्राई कर लेना इसको, किसी को बहुत मन है अगर तो जानने का कि प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। और हमने एक चीज और देखी, क्लियर करते हैं इसको, प्रेशर बराबर फोर्स, ये भी तो है, केवल एरिया पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी तो डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे। तो प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेशन टू फोर्स, डायरेक्टली, सॉरी, डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स, ओके। तो मतलब कि फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ तो इन डायरेक्ट रिलेशन में तो कुछ सोचना ही नहीं है, एक को बढ़ाओगे दूसरा अपने आप बढ़ेगा। इट्स लाइक यू कैन से कि टोइंग वैन्स देखी है, टोइंग वैन्स जो जिस गाड़ी को टो करके ले जा रहे होते हैं टोइंग वैन्स, तो गाड़ी उसके साथ ही जाती है, ये नहीं कि टोइंग वैन लेफ्ट जा रही है तो गाड़ी राइट जाएगी, साथ में जाती है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया, ठीक। ये तो 10 बार शायद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन, अब इसमें और ज्यादा क्या ही बोलना। तो प्रेशर जो है फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। एंड इसके बहुत एग्जांपल्स हैं, बहुत एग्जांपल्स, आई हैवंट इंक्लूडेड, बट गूगल कर लेना, इतने एग्जांपल्स मिलेंगे प्रेशर के, समझ में आ जाएगा अपने आप ही। एंड इससे मतलब ये सबसे बेसिक एग्जांपल था, सो ये तो हमको समझ में आ गया। अब ये कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये you don't have to study, I'll read, you don't have to read this, I'll tell you कि क्या लिखा है, बहुत सिंपल। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं क्विकली,
अच्छा, कोई कहीं पर अगर जोन आउट हो रहा है या कहीं लॉस्ट हो जा रहा है या कुछ लग रहा है कि समझ में नहीं आया, जितना पढ़ाया उसमें से पूछना, क्योंकि प्रेशर के वैसे तो बहुत चीजें हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू ना कि उतना ही जानना जितना जरूरत है। तो अगर किसी को कुछ डाउट है, जोन आउट हो गया कहीं पर या मिस कर गया, तो वो एक बार चैट में लिख दो, तो प्रेशर को समझा देंगे ढंग से एक बार। ये मतलब अभी तो समझ में आ गया होगा, बट आगे के लिए तो अगर जरा सा मिस आउट हो गया हो कहीं पर, देन प्लीज टेल मी, आई रिपीट इट। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये ब्रिक दिखा है, ब्रिक, आइसक्रीम ब्रिक नहीं है, वो पत्थर वाला ब्रिक है। ठीक, चलो एक काम करते हैं, चलो अब। सो नाउ आई एम एट माई होम एंड मेरे पास, आई डोंट हैव अ हैमर, हथौड़ा नहीं है मेरे पास, एंड आई हैव अ पेन विच आई हैव टू एम्बेड इनटू द वॉल। वॉल हैंगिंग के लिए आई हैव अ पेन विच आई हैव टू पेनिट्रेट इनटू द वॉल, ताकि मैं वॉल हैंगिंग लगा पाऊं अपनी। ठीक, so now I have only one option in my hand. I have a brick. Fine, I have a brick. So now tell me, ब्रिक को मैं कैसे यूज कर सकता हूं कि मैं इजीली पिन को पेनिट्रेट कर पाऊं वॉल के अंदर। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैसे यूज कर सकता हूं, दैट डेफिनेटली मीन्स या आंसर बताने ही हो जाएगा। छोड़ो, you all tell कि how can I easily penetrate the pin using the brick. Using smallest phase perpendicular apply to the force। हाँ, वो तो perpendicular apply to the force, वो तो साइंटिस्ट ने ही दिया है कि perpendicular ही फोर्स होगा। ठीक, यूजिंग स्मॉलेस्ट फेस जो है उसका सही आंसर है स्मॉलेस्ट फेस। चलो ठीक है, एरिया बोलते हैं चलो उसको, कि इस स्पेस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो इफ आई यूज से, इसका टॉप व्यू कैसे दिखाऊं यार, चलो एक और पिक लेते हैं। थोड़ी मतलब बड़ी, अरे क्यूबॉइड नहीं, सॉरी। ओके, सो हाँ, so I have two options. Either I use the top of my brick, which is T, or I use the side of my brick, which is S. So now, as who said the answer? Nirmal said that अगर हम लोग स्मॉलेस्ट फेस यूज करें, मतलब कि ये फेस की बात कर रहे हो राइट, ये इस फेस की बात कर रहे हो, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा उस पिन को पुश करना दीवार में। ठीक, इस फेस की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्यों, इसका रीजन क्या है? हाँ, इसका रीजन क्या है? सिंपल, जो हमने अभी पढ़ा, एरिया घटा दोगे प्रेशर बढ़ जाएगा, बस। एरिया स्मॉलर, स्मॉलर, हायर नहीं शुभम, स्मॉलर एरिया ना, एरिया घटाओगे तो ही तो प्रेशर बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन है ना, अगर एक को घटाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, तो एरिया तुमने घटा दिया, ये इसका कम एरिया है ना, इसका एरिया ज्यादा आएगा। ठीक है, तो बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पे, तो हमने इसके थ्रू हम लोग ऐसे मतलब ब्रिक को कैसे बताएं। सी दिस इज अ पावर बैंक, ओके, तो ये ब्रिक का शेप है। तो नाउ आई हैव टू ऑप्शन, सो ईदर आई यूज दिस थिंग फॉर हैमरिंग द पिन, और आई यूज दिस सरफेस, विच इज अ बेटर ऑप्शन। दिस वन इज अ बेटर ऑप्शन। व्हाई दिस इज अ बेटर ऑप्शन? एरिया बहुत कम है इसका, सरफेस एरिया मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां होगा ना वो बहुत कम है, यहाँ पे पूरा ये इतना सरफेस एरिया ज्यादा है इसका, दिखने में ही लग रहा है कि इसका सर्विस एरिया ज्यादा है। एरिया बढ़ जाएगा प्रेशर घट जाएगा, एरिया कम होगा प्रेशर प्रेशर बढ़ जाएगा, बस ऐसे हैमर करना है। पावर बैंक से मत करने लगना आप लोग।
जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, चलो। ओ अच्छा, ओके फाइन, माय बैड, सॉरी। ठीक है, तो बस यही है प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो प्रेशर, इसमें तो कोई एक तो एग्जांपल था ब्रेक वाला, वो जो मैंने बता दिया। ठीक, नाउ pressure, in other words, if the surface becomes smaller, the pressure becomes larger. It is for this reason that a knife, the nails are so sharp. The knife distributes the force over the entire cutting edge. Sharper the edge, higher the pressure. Consequently, the cutting with a sharp knife is easy. For the same reason, that is the reduction of surface area increases net pressure. And when you slap someone, the force you apply in slapping the surface is distributed all over the palm of your hand, in contrast to a karate chop. ये भी अच्छा एग्जांपल है। ठीक, सो अगर किसी को, या तो दो तरीके मारने के, ठीक, ट्राई कर सकते हो कहीं पर अपने साथ भाई बहनों के साथ। इधर यू यूज दिस सरफेस एरिया, ठीक है, और यू यूज दिस सरफेस एरिया, बट यू नेवर यूज दिस सरफेस एरिया। ओके, दिस इज, ये कराटे वाले लोग यूज करते हैं, सरफेस एरिया कम हो जाता है। ठीक है, सो यू हैव सीन कि कराटे में क्या होता है, दे यूज दिस थिंग, ओके, एंड मोमेंटम भी समझाया था उसे कि मोमेंटम जनरेट करते हैं एंड देन दे स्ट्राइक ऑन टू द स्लैब ऑफ ब्रिक्स। सरफेस एरिया कम है, बहुत इजीली तोड़ पाएंगे। अगर वो सेम ब्रिक्स को ऐसे तोड़ना चाहे तो तोड़ते ही रह जाएंगे, कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो गया। प्रेशर बढ़ाना है मतलब सरफेस एरिया घटाना है, दैट इज इट। ठीक, चलो। नाउ इसके बाद इसमें और कोई एग्जांपल है क्या? टिपिकल ड्राइंग पेन्स, वही ड्राइंग पेन वाला एग्जांपल था व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। there's one similar tactics are used in skiing and surfing as surfing surface area. Okay, हाँ ये you must have seen skiing or what we say water gliding. तो उसमें देखा होगा जो वाटर, जो उनके बोर्ड्स होते हैं, राइट, दोज आर वेरी ब्रॉड, बेस बहुत ब्रॉड होता है उनका। सरफेस एरिया बढ़ाया है उन्होंने, क्यों बढ़ाया है? क्योंकि वाटर का प्रेशर जो है ना, वो बोर्ड पे कम से कम आए एंड दे डू नॉट फॉल ऑफ एंड दे डू नॉट वॉबल बैक। ठीक, सो इसीलिए वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं हमेशा वाटर बोर्ड्स का, सॉरी ग्लाइडिंग बोर्ड जो होते हैं वाटर सर्फिंग वाले, तो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इसीलिए बढ़ाते हैं ताकि प्रेशर कम लगे उसमें। ठीक, तो प्रेशर में तो मेरे ख्याल से इतना ही है। क्वेश्चंस जो इस पे बनेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो नहीं करने हैं क्योंकि वो आते नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे। एंड आई हैव समथिंग इन माय माइंड व्हिच आई हैव नॉट एडेड टुडे इन द स्लाइड, बट विल बी एडिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें थोड़ा सा दो तीन कॉन्सेप्ट मिक्स करके आई हैव ट्राइड टू फ्रेम अ क्वेश्चन एंड आई होप दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू गेट मच मोर क्लैरिटी इन योर कॉन्सेप्ट्स। सो नेक्स्ट क्लास में एक बार करेंगे, क्योंकि टुडे माय मेन फोकस वाज फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन करते हैं अभी, प्रेशर को हम लोग और थोड़ा डेप्थ में जान सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं है, इतना ही है। ठीक, तो थोड़े फिर एक बार चैट में सब लोग प्लीज रिप्लाई कर दो एंड प्लीज बेयर कर लो मेरे साथ थोड़ी देर, कि ये क्या है हर 2 मिनट पे रिप्लाई चाहिए होता है। अभी तक क्लियर? चलो चलो, सबको क्लियर? ठीक है, चलो थोड़े मीम्स देखते हैं। आओ, कॉन्सेप्ट से पहले ही पता नहीं, आई लव मीम्स, सो थोड़ा सा मीम्स देखते हैं, उसके बाद विल मूव ऑन टू आवर कॉन्सेप्ट। पहले थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं कि क्या है फिक्शन। चलो देखते हैं, दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, just a second, I have a power cut at my side, just a second, just give me a minute, तब तक तुम लोग ये मीम्स देखो and I'll explain them. हेलो, या सॉरी। सो दिख रहे हैं सबको मीम? सब देखो, पहला मीम क्या है? while walking on a slippery surface, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। So this you all must have felt it, right? कभी बारिश जब होती है
एंड वो जो 90 रुपए वाली चप्पल नहीं आती है उस समय बेस्ट होती है वो चप्पल. दोज आर द बेस्ट स्लीपर्स, उस पे ग्रिप बहुत अच्छी होती है. एंड कभी वो बहामास एंड ऑल दिस चप्पल यू ट्राई एवर दो स्लीपर्स, वो इतनी ज्यादा स्लिपरी होती है. एंड अगर बारिश हो रही है तब तो मतलब और ही स्लिपरी हो जाता है सरफेस, राइट? सो यू ऑल मस्ट हैव फेल्ट दिस, यू ऑल मस्ट हैव स्ट्रगल्ड वॉकिंग ऑन अ वेट सरफेस, स्लिपरी सरफेस, राइट? सभी को हुआ होगा ना एक बार तो ऐसा, बारिश में कभी तो भागे होगे, भीगे होगे भाई. ठीक. सो इसका स्ट्रगल का रीजन क्या है वो हम लोग अभी आगे जानेंगे. एक और मीम देखते हैं चलो. मी ट्राइंग टू रन ऑन अ स्लिपरी सरफेस, द सरफेस बी लाइक, क्यों गिरा डाला ना. एग्जैक्टली. स्लिपरी सरफेस पे कभी भागे हो तो मतलब मैक्सिमम टाइम अगर स्लीपर्स नहीं अच्छी हैं या तुमने ग्रूव्स नहीं पहन रखे हैं या कुछ ऐसा फुटबॉल बूट्स नहीं पहन रखे हैं तो पक्का गिरोगे. कोई चांस ही नहीं कि कोई बचा पाए. ठीक है. तो सरफेस गिराता है, क्यों गिरा डाला ना. नाउ फ्रिक्शन टू ऑल ऑफ अस. तो एक सेइंग है बहुत फेमस, वी ऑल मस्ट हैव हर्ड दैट बिफोर, कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल. एंड व्हाई डू वी से दैट? इसका क्या रीजन है कि हम लोग ऐसा कहते हैं कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल? तो उसका एक तो ये देखो, चलो हाँ ये देख लो. फ्रिक्शन टू ऑल ऑफ अस, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. तो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल. फ्रिक्शन के बगैर कुछ नहीं है. एंड इफ यू रिमेंबर द वेरी फर्स्ट क्लास, लेट मी जंप ऑफ टू दैट स्लाइड. This is, no, this nahi, sorry, this one, and also one question which I framed the other day. तो यहाँ पे इसको छोड़ दो, बस ये देखो ये इंसान चल रहा है एंड देयर आर सम फोर्सेस व्हिच आर मेड. फिर एक क्वेश्चन, एक ये भी था FBD कि यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है. F नॉर्मल क्या है, अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक. फिर एक क्वेश्चन ये था जो कि शायद कम लोगों ने सही आंसर किया था इसका, बट एक बार आज फिर से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को. चलो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. Just write down the options, that is it. Okay, one answer. Okay, okay. A and C, which I can see on the chat box. A and C. So A says assertion and reason both are true. Okay. C says assertion is true, but not the reason. Okay. So, okay. Many people have answers. Okay. So let me point. Only two people have answered C, which I which that the other day also the answer is Shubham and Sijal. Yes, bilkul sahi. C is the correct option. Why it is the correct option? Because of very simple reasons. Friction can never become zero. Even one of you asked me a question yesterday कि सर in space is the friction zero? So I said कि नहीं, friction zero नहीं हो सकता है. मतलब ideal conditions लोगे ना अगर, then you may say कि हाँ चलो friction को neglect करते हैं. नेग्लेक्ट करना और जीरो करना, दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक. टेंडिंग टू जीरो एंड जीरो, दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, याद रखना ये चीज को. ये कॉन्सेप्ट आई गिव इन द वेरी फर्स्ट क्लास बोलने कि फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता है. तो असर्शन तो ठीक है, मैन वॉकिंग सडनली स्लिप्स एंड फॉल्स, क्यों गिरा हमें नहीं पता. रीजन उसमें दिया गया कि फ्रिक्शन बिकेम जीरो. जीरो नहीं हुआ. अगर ये यहाँ पे लिखा होता है ना केवल कि फ्रिक्शन was less, friction was negligible, तब कहते हैं कि हाँ assertion and reason both are true, then the people have answered A, सही हो जाता. But now we are talking about that friction became zero. That is a very wrong statement in itself. So yes, only assertion is true. ठीक है. Man walking suddenly slips and falls. That is it.
due to relax. Okay, fine. Yes, yes, Shruti, you are perfectly fine. ठीक है, so हो गया. तो अब friction is a necessary evil. If we assume a friction will be zero, तो assume, see, assumptions वाली जो बात होती है, see, if you are assuming something, that means you are not that thing, right? मतलब अभी हम लोग वो है नहीं, बस अज्यूम कर रहे हो ना. तो अज्यूम करके तो तुम कुछ भी बोल सकते हो, मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी, राइट? वो तो हाइपोथेटिकल हो गया, उसमें तुम कुछ भी मानो या फिर कुछ भी एक्सेप्ट कर लो. तो फ्रिक्शन से फिर फर्क क्या पड़ रहा है? उस केस में अगर हमने मान भी लिया कि फ्रिक्शन जीरो है, लेकिन सच्चाई तो हमें पता ही है ना कि भैया फ्रिक्शन जीरो हो नहीं सकता है, वो तो हमने बस माना है. इट विल बी गिवन दैट इन द क्वेश्चन? नो. अगर क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्चुअल ऐसा है तो बहुत कम चांसेस है कि दिया रहेगा, और अगर दिया रहेगा तो इसी क्वेश्चन की तरह वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत. ये गलत, ये क्वेश्चन अगर दिया है तो बस कुछ नहीं, तुरंत देखना कि हाँ ये स्टेटमेंट में लिखा है फ्रिक्शन जीरो है, मतलब गलत हो गया वो. ठीक है, तो अजम्पशंस आर डिफरेंट थिंग. वो तो हमने अज्यूम किया है ना, तो हमने मान लिया कि हाँ चलो हमने ऐसा मान लिया. ठीक है, चलो. इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल. फ्रिक्शन को जीरो बना ही नहीं सकते तुम लोग. कोई नहीं, आप लोग क्या, मैं, कोई कोई भी नहीं बना सकता फ्रिक्शन को जीरो. हो सकता है ऐसे कुछ, मतलब देखो, अगर वैसे देखा जाए, आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन, नेग्लिजिबल. सी, देयर इज अ वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड टेंडिंग टू जीरो. ठीक है, लिमिट्स एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, बट ठीक है, आई एम टेलिंग यू, वो कॉन्सेप्ट लिमिट्स को भूल जाओ. चलो एक चीज बता देते हैं. इट्स गुड दैट क्वेश्चंस आर कमिंग अप इन योर माइंड. तो हाँ, चलो, फ्रिक्शन ये मान लिया हमने, फ्रिक्शन. नाउ आई एम सेइंग टेंडिंग टू जीरो, एंड इन दिस आई एम सेइंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिनका यहाँ पे मैथ्स ऑप्शनल है, वो शायद जानते होंगे, या फिर जिन्होंने 11th-12th मैथ्स पढ़ी है उनको ही पता होगा. एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट्स का. ठीक है, तो उसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/x, x टेंडिंग टू जीरो. तो पता है, अगर यहाँ पे x टेंडिंग टू जीरो की जगह पे x इक्वल टू जीरो हो जाता तो ये इनफाइनाइट हो जाता. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? तो इसीलिए हम उसे टेंडिंग टू जीरो लिखते हैं. इनफाइनाइट तो कोई चीज होती नहीं है, वो भी मतलब होती है बट हाइपोथेटिकल है ना वो सब भी. तो ये भी इनफाइनाइट हो जाता. बट फ्रिक्शन में भी अगर तुम वही चीज लिख दो कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, जो कि कभी कोई लिखता नहीं है, नहीं लिख सकते. फ्रिक्शन कभी जीरो हो ही नहीं सकता है. जहां फ्रिक्शन जीरो हो गया वहां पे आप जा भी नहीं सकते हो, आप मतलब खड़े ही नहीं हो पाओगे वहां पे. मे भी हो सकता है कि ऐसी कुछ जगह हो, जैसे कि इसका मतलब कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट ऐसे किए हों विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, कि हाँ उन्होंने कुछ पर्टिकुलर एरिया को फ्रिक्शन फ्री कर दिया, लेकिन तब भी ये नहीं बोलेंगे कि फ्रिक्शन जीरो हो गया. ठीक है, जैसे कि कैरम बोर्ड का एग्जांपल ले लो. ठीक, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे आप पाउडर डालते हो, ठीक, एंड जब स्ट्राइकर को मारते हो तो क्या ऐसा होता है क्या कि स्ट्राइकर यहाँ लड़ा और फिर चलता ही रहा, रुका ही नहीं, रुका ही नहीं, इनफाइनाइट लूप में चला गया? कभी ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ कि कैरम का स्ट्राइकर को मारा और वो रुका ही नहीं? तो पता है कब होगा? जब फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो होगा. रुक ही नहीं पाओगे फिर कभी. ये चीज समझ में आई? इसीलिए फ्रिक्शन हमेशा यहाँ पे भी, कैरम ये क्यों रुकता है, क्योंकि पाउडर डालने के बाद फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो नहीं होगा, फ्रिक्शन टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा. नेग्लिजिबल हो सकता है या उसको घटा सकते हो, बट जीरो नहीं कर सकते हो. तो ये चीज हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शन जीरो होना मतलब हाइपोथेटिकल है, एंड अगर हो गया ठीक, विच इज ऑल्सो अ हाइपोथेसिस, अजम्पशन, अगर हो गया, इफ
अगर हो गया तो चलते ही रहोगे या गिरते ही रहोगे या कुछ भी मतलब करोगे, मोशन में रहोगे हमेशा, फ्रिक्शन अगर जीरो हो गया तो। इज इट पॉसिबल कैरम कैन रन विदाउट फ्रिक्शन? दैट इज व्हाट आई हैव सेड, राइट? कैरम कभी चल ही नहीं पाएगा तुम्हारा बगैर फ्रिक्शन के। कैसे चलेगा? अगर ये स्ट्राइकर रहा, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, रुकेगा ही नहीं बस। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। एंड यार एक चीज, इसमें हम लोग इतना डिबेट क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो ये, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके टू हैव क्वेश्चंस इन योर माइंड, आई विल टेल यू। भैया ये बताइए आप लोग, दिस इज अ कैरम बोर्ड, राइट? अच्छा ठीक है, प्लीज पार्डन माय ड्राइंग, दिस इज अ कैरम बोर्ड। तो चलो ठीक है, हमने एक चीज अभी नहीं बताई, किसने बोला था चैट में अभी कि someone said it right, due to irregularities, Shruti said it, due to irregularities, ठीक, rightly pointed out irregularities। देखो जो कैरम का सरफेस होता है ना, तुमको ऊपर से दिख रहा है कि हाँ यार बड़ा स्मूथ सरफेस है, आज तो रानी और कवर सब हमारा ही है, क्वीन कवर सब हमारा है, दिख रहा है ऊपर से, ठीक। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, व्हेन वी गो टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है, देयर आर इरेगुलरिटीज। इसको अगर जूम कर दें थोड़ा सा, ये मैग्नीफाई किया है मैंने, ठीक है, देयर आर इरेगुलरिटीज इन द सरफेस। तो क्लियर करते हैं, ये इसका मैग्नीफाइड वर्जन है इस कैरम बोर्ड के सरफेस का। देयर आर इरेगुलरिटीज, कहीं ऊबड़ खाबड़ ऐसे, ठीक। इलाहाबाद की कुछ कुछ सड़कें भी ऐसी हैं, ठीक, जहाँ पे इरेगुलरिटीज है। समझ में आ रहा है ये चीज? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आंखों से नहीं दिखेगा वो चीज, आंखों से नहीं दिखने वाला है कि पता चला कैरम बोर्ड में इरेगुलरिटीज ढूंढ रहे हैं कि मिली नहीं हमको, तो सर ने तो कहा था। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कभी देखना, यहाँ पे इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक। तो अगर ये इरेगुलरिटीज को तुम कैसे हटा पाओगे? चांस ही नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करने में हालत खराब हो जाती है, इंसान को इतना कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस देनी पड़ती है, तो हाउ कैन वी मतलब हाउ कैन वी रिमूव इरेगुलरिटीज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल? नॉट एट ऑल पॉसिबल। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग इनको कुछ नहीं करोड़ नहीं कर सकते इन इरेगुलरिटीज को, दोज विल बी देयर, ठीक। तो ये इरेगुलरिटीज की वजह से जो स्ट्राइकर आता है, ये गया इसकी, और स्ट्राइकर में भी इरेगुलरिटीज होती हैं, वो भी दिखेंगे नहीं बट हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इसमें भी होती हैं। तो इसकी और इसकी इरेगुलरिटीज, ये देखो, इसकी और ये स्ट्राइकर की इरेगुलरिटीज है, ठीक। ये स्ट्राइकर, ये बोर्ड, दोनों फंसती हैं। जब फंसेंगी ना, जब ये फंसेंगी तभी तो ये रुकेगा। अगर इरेगुलरिटीज होती ही नहीं तो चलता रहता, विच वाज योर क्वेश्चन, कि फ्रिक्शन जीरो कर देंगे तो क्या? तो अपने क्वेश्चन में अपना आंसर ढूंढिए आप लोग। आपने खुद ही आंसर दे दिया है कि इफ वी से, इफ वी अज्यूम, तो वो अज्यूम कर रहे हो, दैट इज नॉट ट्रूथ, दैट इज नॉट द ट्रूथ, राइट? वो आप अज्यूम कर रहे हो केवल। आई होप दैट इज क्लियर बाय नाउ। अब ऐसे किसी के सवाल में क्वेश्चन नहीं आने, वो दिमाग में आने नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन की फ्रिक्शन को जीरो कर देंगे तो कर देंगे, वो कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, साइंटिस्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग कहां से करेंगे? क्लियर? किसको डाउट था? बाकी अगर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ हो जहां पे कंडीशंस को आइडियल लेके किया गया हो, देन प्लीज हैव अ लुक इनटू दैट, इवन आई विल सर्च, बट ऐसा होता नहीं है। एंड अगर हो रहा है तो वही सब जो हाइपोथेसिस हम लोगों ने ली है या अजम्पशंस ली हैं। बढ़े आगे बढ़े फिर, कि अभी और कैरम और कवर खेलना है किसी को? आई होप दिस इज क्लियर बाय नाउ, ठीक है, जोक्स अपार्ट, बट ठीक है अभी क्लियर हो गया, राइट? चलो, तो कहाँ थे? ओके, तो फ्रिक्शन में आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई वाज स्टडीइंग फ्रिक्शन in my BTech also, and I remember in class 11th it was there in kinematics or kinetics, mechanics में था टोटल, ठीक है। तो मुझे याद है कि I also had many doubts regarding friction, कि यार फ्रिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला डाउट जो यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे अभी तुरंत, सबसे पहले तो मुझे बताना है यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सी क्वांटिटी है। जस्ट क्विकली रिप्लाई इन द चैट। By the time I'll get my water bottle,
please pardon me. Just a minute. Okay, yeah, sorry. Yes, please tell. फ्रिक्शन क्या ऐसी क्वांटिटी है? वेक्टर 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 फ्रिक्शनल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी. ओके, मतलब कि वेक्टर कहाँ है तो हाँ, मतलब कुछ डायरेक्शन होना चाहिए फ्रिक्शन का भी. एंड आई थिंक कि यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन आता है. योर आंसर इज फाइन, फ्रिक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बट ये कंफ्यूजन आता है कि यार अगर है तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए. सो लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स बिफोर एंड देन विल से कि इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए. ठीक है, चलो तो पहले लेते हैं. चलो, starting with the very simple example. This is a box kept on a surface. This is a man who's trying to push the box. He's applying some force F on the box. Tell me, where will the friction act? On which side? Okay, we are if you are talking about vectors, so yes, we need a convention that is north, south, west नहीं होता है, left, right. Okay, east. So now tell me, which direction will the friction act? West. Towards man, west. Good, good, fine, एकदम सही है. चलो एक और लेते हैं. So these are two boxes, A and B. So now for the box A, listen very carefully. For the box A, tell me where will the friction act? North, south, west, east. West. West. Everyone is agreeing with west, right? कि हाँ west होना चाहिए. चलो ठीक है, ये भी हटाते हैं. Any more answers to this? West. Fine. ये भी सही है. चलो ठीक है, एक और लेते हैं. A, B. Same force. Now tell the friction for this box. And remember, I am applying force only to this box, not to this box. This is just kept on that particular box. I am applying only to this box. Now tell friction for this box. कि इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा. नहीं नहीं, no friction, no, no. In the direction of force, no friction. No friction? How is that possible? No friction is not possible ना. वही तो बात हुई अभी. Maybe west. चलो एक एक करके आंसर रूल आउट करते हैं. सबसे पहला जो आंसर था नो फ्रिक्शन, तो नो फ्रिक्शन तो अभी जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड कि नो फ्रिक्शन तो एक हाइपोथेसिस, एक असम्पशन है, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक. एक ने कहा नॉर्थ. नॉर्थ फ्रिक्शन कैसे लगेगा? ये प्लीज मुझे एक बार समझाना. बट ठीक है, कोई बात नहीं. यू ट्राइड, दैट इज वेरी गुड. नॉर्थ नहीं लग सकता ना. नॉर्थ कैसे लगेगा? फोर्स ही जब, मतलब फ्रिक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना. सरफेस कांटेक्ट होता है तब लगता है. नॉर्थ में अगर हम जाएंगे तो फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे उसको. फिर वो, अगर आप एक बॉल को उछालते हो हवा में, आपने उछाला नॉर्थ की तरफ,
नीचे आती तो एयर रेजिस्टेंस होता है, वो फ्रिक्शन तो सरफेस फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक, मे बी वेस्ट टूवर्ड्स द फोर्स नॉर्थ, नहीं नहीं नहीं, नॉर्थ नहीं ना, चलो मे बी वेस्ट टूवर्ड्स द फोर्स, चलो ठीक है। लेट्स सी इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट द राइट डायरेक्शन, ईस्ट। हम्म, ईस्ट, आलम हैज सेड ईस्ट, ओके। एंड कहीं ना कहीं आई एम मतलब सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, ईस्ट। उसका रीजन क्या है, चलो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, श्रुति शुक्ला हैज सेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि ईस्ट ही है वो भी। चलो अब इसको समझते हैं। नाउ आई एम ड्रॉइंग द FBD फॉर ब्लॉक बी। ऑल ऑफ यू रिमेंबर व्हाट इज FBD? ठीक, ईस्ट इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, क्यों करेक्ट है ये समझाते हैं अभी। बी का FBD बना रहा हूं, ठीक है। बी का कुछ वेट होगा। FBD मतलब सारे फोर्सेस आई एम ट्राइंग, ठीक है, इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इसका वेट नीचे, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब देखो, ये बॉक्स था, ठीक, ये जो इसके नीचे वाला बॉक्स था ए, ये जा रहा है इधर, इस तरफ, इधर जा रहा है, तो इस पे तो फोर्स लगाया नहीं है। तो पहले ये बताओ, बाय विच लॉ ऑफ मोशन, विच न्यूटन्स, बाय न्यूटन्स विच लॉ ऑफ मोशन ये जो बॉक्स है ये कहां जाएगा और कौन सा लॉ की वजह से जाएगा, ये भी बताओ। टेल मी क्विकली। Those who have answered east, please, I want the answers from you. कि न्यूटन्स which law of motion would be applied and due to which law of Newton's ये किस तरफ जाएगा एंड क्यों जाएगा। क्यों जाएगा का आंसर भी यही है कि कौन सा लॉ है, लॉ का नाम बता दो एंड अपने आप समझ में आ जाएगा क्यों जाएगा। ऑपोजिट एंड फर्स्ट लॉ, inertia of rest, exactly, that is what I wanted to hear, inertia of rest. Avnish, you also said the right thing, but ऑपोजिट वाली चीज वो अलग से हम समझेंगे, बट फर्स्ट लॉ इज द राइट आंसर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो सिंपल सी बात है ना, कभी यू हैव ट्राइड रेस्ट, राइट, कभी ट्राई किया होगा यार। अभी एक पाइल ऑफ बुक्स है, ठीक, उससे एक बुक खींचो तो क्या होता है, बाकी बुक्स नीचे गिर जाती हैं, मतलब उसके ऊपर ही, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो मतलब कि बॉक्स पीछे जाएगा। एंड अब ये चीज हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन, ठीक, जिन लोगों ने कहा है फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन एक्ट टुवर्ड्स फोर्स, फ्रिक्शन रेजिस्ट मोशन, ठीक है, बिल्कुल सही है, बट व्हाट आई रिमेंबर फ्रॉम माय स्टडीज, आई एम टेलिंग यू फ्रिक्शन रेजिस्ट, ये कहीं लिख देंगे, आई हैव रिटन आल्सो, या यहाँ पे लिख देते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रेजिस्ट रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को जरूरत नहीं है, बट रेफरेंस फ्रेम से इसको थोड़ा सा एनालॉजी क्रिएट कर लो एक बार। रिलेटिव मोशन, ठीक, रिलेटिव मोशन। अब इस बॉक्स वाले केस में क्या हो रहा था, ये जो ऊपर वाला बॉक्स था ये इसके रिलेशन में यहाँ पे मूव कर रहा था इस तरफ, ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन ऑपोजिट रिलेटिव मोशन। तो अगर ये इधर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। समझ में आ गया? जल्दी से चैट पे एक बार रिप्लाई एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। फिजिक्स वाले यहाँ पे कौन कौन से हैं, प्लीज रेज योर हैंड और प्लीज रिप्लाई इन द चैट। निर्मल Kumar, you from physics, okay. So Nirmal, I have a question for you. Okay, not a question, only 12th. What is only 12th? Okay, leave it. So I hope कि मतलब
if you have something to add, then please tell me, because रिलेटिव मतलब वी आर टॉट दिस एवरीवेयर, फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट या मोशन के अगेंस्ट होता है, बट आई थिंक ठीक इवन द फिजिक्स वाले जो हैं यहाँ पे, उनसे भी आप लोग पूछिएगा कभी, जो आप जब फिजिक्स में जाएंगे या फिर कहीं अच्छी जगह पढ़ा होगा, अच्छी की पढ़ा होगा, तो हर जगह ये लिखा रहता है कि फ्रिक्शन ऑपोजिट रिलेटिव मोशन। ठीक, बेसिक डेफिनेशन के लिए बिल्कुल सही है, फोर्स अप्लाइड को रेजिस्ट करता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सपोज ऐसे 3 बॉडी सिस्टम आ गया, इसके ऊपर एक और रखा है, इसके ऊपर 10 और रखे हैं, इसके ऊपर 10 और रखे हैं, तो आप अगर सब में यही सोचते रहोगे कि यार फोर्स, मतलब हमने तो पढ़ा था कि फोर्स लगता है केवल इस पे, मतलब हमने पढ़ा था कि फोर्स के ऑपोजिट होता है फ्रिक्शन, तो यार फोर्स तो मैं केवल इस पे लगा रहा हूँ, तो आप जब इसका सोचोगे तब क्या दिमाग में आएगा, तब तो यही आदि, तब तो ये बोलोगे कि यार हमने तो पढ़ा था कि फोर्स के साथ चलता है फ्रिक्शन, फोर्स के ऑपोजिट, बट फोर्स तो लग रहा है केवल इस पे। तो अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इसका और इसका बताओ, देन व्हाट विल यू आंसर? सो द ओनली वे आउट ऑफ दिस इज रिलेटिव मोशन। ठीक, रिलेटिव मोशन अगर टाइम मिला तो 11th का कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ चुके हैं हम लोग, रेफरेंस फ्रेम में रिलेटिव मोशन पढ़ चुके हैं, पता नहीं हम लोग को लेकिन पढ़ चुके हैं। ठीक तो कभी मिला तो आई टेल यू क्या होता है रिलेटिव मोशन, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक, बट याद रखना रिलेटिव मोशन कोई के थ्रू हमेशा ट्राई करना कि हाँ यार क्या बोलना चाह रहा है, एंड बहुत एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे जहां पे केवल रिलेटिव मोशन के थ्रू ही पता कर पाएंगे कि फ्रिक्शन ऑपोजिट है, मतलब फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन। एंड कुछ एग्जांपल्स ऐसे सिंपल भी होंगे जिसमें आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो कि हाँ, हम देख के बता सकते हैं कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। अरे यार लिक्विड में लग सकता है फ्रिक्शन, सी आई सेड ना कि अभी हम लोग लिक्विड्स पे गए नहीं है, अभी प्रेशर वाले चैप्टर में प्रेशर इन फ्लूइड्स जब पढ़ेंगे, बहुत चीजें हैं। ठीक, सरफेस टेंशन मेरे ख्याल से सिलेबस में नहीं है। ठीक, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग करेंगे उसको डिस्कस। अभी के लिए केवल पहले ये तो समझ लो, आप लोग ये तो समझ लो एक बार कि फ्रिक्शन होता क्या है, उसके बाद ना हम लोग जाएंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीजें कंबाइन करके क्वेश्चन बनेगा ना। अभी के लिए तो केवल यही जान लो कि फ्रिक्शन, अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा अगर, तो उसको पहले वो तो आप दिमाग में लाओ कि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है। अभी सही पानी वानी में नहीं जाना है, पहले जमीन पर तो एक बार देख लें कि जमीन पे क्या हो रहा है। ठीक, तो आप एक और क्वेश्चन करते हैं। से दिस इज अ पर्सन, ओके यार, अच्छा रुको इसको हटाते हैं, वो फर्स्ट वाला एग्जांपल ही देते, लेकिन उसमें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द आंसर, तो वहां पे काम नहीं करेगा। इसको बनाते हैं, चलो ट्राई करते हैं बनाने का। दिस इज अ पर्सन हु इज वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक, सपोज ही इज वॉकिंग, ये इसके जूते वगैरह जो भी। नाउ टेल, क्या पूछे इसमें, चलो हाँ इसका एफबीटी बताओ या इसका फ्रिक्शन बताओ किधर लगेगा। एंड दिस मैन इज वॉकिंग टूवर्ड्स व्हाट वी से एज ईस्ट। जस्ट अ सेकेंड। Yeah, so so now tell, this man is walking towards, this man is walking towards what? East. दिख रहा है ना सबको? एग्जैक्टली, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब पढ़ेंगे। अभी सब लोग उसके हिसाब से पढ़ो कि ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स है, बहुत हाई में नहीं जाना है, क्योंकि हाई में क्वेश्चंस मतलब एज सर आल्सो शौर्य सर आल्सो सेड कि यही होता है जब दुनिया भर का ज्ञान आ जाता है एंड फिर हमको लगता है कि ये भी होता है वो भी होता है, तो पहले बेसिक्स पे स्टिक करो। ठीक, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। दुनिया भर का ज्ञान लेने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है उस चीज का। सो एज हु सेड विस्कोसिटी, बिल्कुल उसमें हम लोग पढ़ेंगे, बट उसके लिए वेट करो, एंड विस्कोसिटी शायद हमारे सिलेबस में है भी नहीं, तो हम लोग, लेकिन फिर भी चलो एक इंट्रोडक्शन ऐसे थोड़ा बहुत कर देंगे। वेस्ट फ्रिक्शन, अच्छा वेस्ट फ्रिक्शन, वेस्ट 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 वेस्ट,
बेस्ट होगा। Anyone else who wants to answer? East. Shruti has said east. Okay. Yes. अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ, दो लोग को समझ में आया है। स्टैटिक फ्रिक्शन, बिल्कुल। There are two force, one due to road and अच्छा हाँ हाँ हाँ, थैंक यू अवनीश फॉर रिमाइंडिंग मी दिस वन थिंग। एक क्वेश्चन हम लोग, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करते हैं 1 मिनट के लिए, एक क्वेश्चन और पहले कर लेते हैं उसके। ये बॉक्स वाले क्वेश्चन में, जब ये वाले बॉक्स में हम लोगों ने बोला था, क्या बोला था कि इसका मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। बट नाउ आई एम सेइंग कि फ्रिक्शन इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, और ये एफ एस मतलब स्टैटिक। स्टैटिक में मत जाओ, चलो अभी स्टैटिक से मत जाओ, स्टैटिक भूल जाओ, कुछ नहीं होता स्टैटिक फ्रिक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से, सॉरी। ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, मैंने कहा कि इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, हम लोगों ने, सब लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया, आंसर लाया फ्रिक्शन इधर लग रहा है, बट मैं कह रहा हूं कि फ्रिक्शन इस पे इधर भी लग रहा है। नाउ टेल मी, जस्टिफाई करो। आई नो आई एम राइट, नाउ यू विल हैव टू जस्टिफाई कि कैसे इस पे फ्रिक्शन इधर भी लग रहा है, इस पे इधर भी लग रहा है। ड्यू टू बिलो बॉक्स, एग्जैक्टली, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। ये जो एक्चुअली इस पे फ्रिक्शन लग रहा है ना, ये हमको लग रहा है कि उस पे लग रहा है, लेकिन इंडीड जो असल में है वो इस पे लग रहा है, एंड फिर ये इस पे कुछ फ्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है ठीक। और नीचे वाला बॉक्स का कुछ एक्सेलरेशन भी है क्योंकि उससे फोर्स लग रहा है, तो बैलेंस तो नहीं हो रहा है फ्रिक्शन, सिंपल सा हमको दिख रहा है, तो इसीलिए मूवमेंट हो रहा है बॉक्स का, बस सिंपल सी बात है। तो एफ और एफ दोनों चल रहा है, तो यही मुझे पूछना था उस समय, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंडर आता है ये, ठीक। क्लियर हो गया होगा अब तो सबको, न्यूटन थर्ड लॉ, एग्जैक्टली, ड्यू टू बिलो बॉक्स, ठीक है। चलो अब उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, सॉरी यार। तो ओनली हु आंसर्ड देयर, श्रुति आंसर्ड एंड निर्मल आंसर्ड दैट फ्रिक्शन टूवर्ड्स ईस्ट। फ्रिक्शन टू मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन टू मतलब क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर यू आर टॉकिंग अबाउट, or that is slang language too, whatever it is, but I think that you both are right, because हमने फिर से यहाँ पे देखो वही चीज मिस की, हमको दिख रहा था कि इसका मोशन इधर हो रहा है, तो हमने तुरंत कह दिया कि फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ठीक। लेकिन इसका रीजन क्या दिया था, किसने? श्रुति ने दिया था ना, कहाँ गया? स्टैटिक फ्रिक्शन तो चलो ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब क्यों ऐसा हो रहा है, ध्यान से जरा किसी भी चीज की एफबीडी बनाओ, ठीक है, बिकॉज आई हैव डन दिस मिस्टेक प्रीवियसली। एफबीडी बनाने से क्लैरिटी बहुत आ जाती है, सोचने का एकदम वो हो जाता है कि क्या हो रहा है, असल में क्या हो रहा है, ठीक है। ये इंसान है, ये ऐसे चल रहा है, चलो इसको हटाओ, ड्रॉइंग वॉइंग बहुत होगी, इसको हटाओ। ये देखो, ये दिख रहा है, ये इंसान चल रहा है, इसने अपने पैर से पीछे की तरफ फोर्स लगाया, अब समझ में आया? पीछे की तरफ फोर्स लगाया, फोर्स ने लगाया वेस्ट की तरफ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर आप ये इस वाले उस वाले कॉन्सेप्ट से चल रहे होते हैं अभी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करता है, तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। इसीलिए आई सेड रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को। रिलेटिव मोशन यार, मतलब मेरा तो बहुत मन कर गया पढ़ने का और पढ़ाने का, सो डेफिनेटली विल हैव अ क्लास ऑन दैट एज वेल। एंड अभी 3 बज गए, बट ठीक है, क्विकली जस्ट ये देख लो, रिलेटिव मोशन, इसने इसको धक्का दिया, अर्थ तो मूव करेगी नहीं भाई, सिंपल सी बात है ना, इतना हैवी मास और हम इतना फोर्स भी नहीं कि हम अर्थ को मूव कराते, ठीक। तो रिलेटिव मोशन इसने वेस्ट में लगाया, फोर्स। कभी जब चलते हो, खुद को इमेजिन करो, रोड पे चलते हो, धक्का ही तो दे रहे हो जमीन को। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुशिंग द ग्राउंड बैकवर्ड्स, मतलब वेस्टवर्ड्स, एंड व्हाट इन टर्न द ग्राउंड इज डूइंग, ग्राउंड इज पुशिंग अस ईस्टवर्ड्स। तो अगर ये क्वेश्चन वहां से सॉल्व करना होता कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करता है, तो गलत कर देते। अब समझ में आ गया क्यों रिलेटिव मोशन बोला?
रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम लोग उठाएंगे। अब तो गारंटीड, अब उसकी इतनी बात हो गई, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। बट ये समझ में आ गया ना कि फ्रिक्शन ऑपोजिट रिलेटिव मोशन। ठीक, ये दिस थिंग वाज केप्ट इन माय सबकॉन्शियस माइंड सिंस 5-6 years when I was in my school life. So मुझे याद था कि I have read this somewhere and that every time it helped me solve friction questions, be it JE questions, be it uh, any question. तो वो हमेशा इट ऑलवेज हेल्प मी, फ्रिक्शन ऑपोजिट रिलेटिव मोशन। तो किसी भी एफबीडी में यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द रिलेटिव मोशन बस। और रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में या फिर आने वाले क्लासेस में कभी पढ़ेंगे। एंड एक बार देख लेते हैं कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन टू सरफेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, when you try to push a book along the floor, friction makes this difficult. Friction always works in the direction opposite to the direction in which object is moving or trying to move. Friction always slows down the objects. Amount of friction, ये सब बुकिश लैंग्वेज है। ठीक, तो फर्स्ट एग्जाम्पल ही देखो इतने अच्छे से यहाँ पे। How is he able to move forward? Why is the man not falling? Why do our shoes wear and tear? तीन क्वेश्चंस हैं, how, why पे, which is what physics is, how और why, क्यों और कैसे। ठीक, तो बस शूज वियर एंड टियर क्यों होते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। क्यों नहीं कर रहा? फ्रिक्शन की वजह से। क्यों आगे बढ़ पा रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। दैट इज इट, खत्म। यही था फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन। अब पानी में फ्रिक्शन है कि नहीं है, हवा में फ्रिक्शन है, उसको क्या बोलते हैं, ये सब हम लोग को शायद सिलेबस में भी है नहीं। आई जस्ट गो थ्रू इट वंस, अगर है तो आई टीच यू। बट मेरे ख्याल से विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और ये सब चीजें हम लोग सिलेबस में नहीं है। अगर है तो हम लोग कर लेंगे। और तब तक के लिए फ्रिक्शन के क्वेश्चंस तो मतलब न्यूमेरिकल आते नहीं है। एफबीडीज प्लीज ट्राई करिए आप लोग, एफबीडी से बहुत क्लैरिटी मिलती है। ठीक, किसी को अभी भी समझ में नहीं आया एफबीडी क्या है तो ये देख लो, ये एफबीडी है। किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट देना मतलब एक बॉक्स है, उसके सब कुछ बताना है तुमको उस बॉक्स के बारे में कि कितने फोर्स लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, बस यही एफबीडी हो गई। ठीक, सो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे एंड यस, आज के लिए